Hello everyone, welcome to Aspire Academy. Today we are going to discuss about the subtopic phylum Coelenterata. Okay, so we have started animal kingdom. Okay, so animal kingdom, how are the animals classified and what is the phylum Coelenterata? What are the organisms that belongs to this Coelenterata and characteristics kya hota hai? All this we'll see in this lecture. Okay, so let's start. What are coelentrates? Phylum Coelentrates. ठीक है, Coelenterata they are also known as Cnidaria. Coelentrate का एक common name है, that is Cnidaria. So we can see the phylum, we can simply say Cnidaria or Coelentrates. So Cnidaria includes about 9,000 species and mostly they are marine. ठीक है, they are mainly marine because they cannot be found in the fresh water, so they are marine. 9,000 around species है. Okay, so the phylum derives its name. ये Cnidaria word कहाँ से आया है? Okay, from the stinging cells. Sting means कांटेदार या आप बोल सकते हो इट इज वेरी स्टिंगिंग, गड़ते हैं हाथ में. ठीक है, अगर आप टच करो इस ऑर्गेनिजम्स को. सो स्टिंगिंग सेल्स और नाइडोब्लास्ट आर प्रेजेंट. ओके, नाइडोब्लास्ट इज ओनली the stinging cells which is present on the ectoderm of the tentacles. So जितने भी आप देखोगे coelentrates है, they are having the tentacles और उस tentacles के ऊपर क्या होता है? Nidoblast, which are the stinging cells. Okay, and the body of these carnivorous animals. So mostly these are, ज्यादातर ये आप क्या देखोगे? They are carnivores. Okay, because they are having on their tentacles nidoblast जो कि स्टिंगिंग के काम करता है. ठीक है, दे यूज टू स्टिंग ऑन द प्रे. ठीक है, अपने जो शिकार है उन्हें हार्म करने के लिए. ओके, नाउ हैबिटेट, वेयर आर दे फाउंड? व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स? में सबसे पहले हैबिटेट, वेयर? सो Cnidarians आर aquatic. यस, aquatic है, मेराइन है, मोस्टली मेराइन एंड फ्यू ब्रैकिश वाटर एंड फ्रेश वाटर में भी कुछ पाए जाते हैं. फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर में दैट इज हाइड्रा. Okay, but rest all are marine. Animal, they are solitary and colonial. Colony के form में पाए जाते हैं. ठीक है, and freely they are found in the water body, aquatic medium में free. Now a few are free floating. कुछ free floating भी है like Physalia. ठीक है, like Physalia. और active swimmer भी है कुछ coelentrates, that is Aurelia. ठीक है, ये Aurelia है. Okay, so this is very active swimmer. A free floating है this Physalia. Okay, ये Physalia है. This is Aurelia and this is Hydra. Okay, so habitat क्या है? Free floating भी हो सकते हैं, swimmer भी हो सकते हैं और even brackish water या fresh water में भी पाए जा सकते हैं, but very few in the fresh water and the brackish water. Okay, now body form, how do they look like? कैसे दिखते हैं coelentrates? Okay, and so we can say Cnidarians or coelentrate exhibit two body forms. The most important is polyps and medusa. Two body form, दो तरह से हो सकता है. ठीक है, one is polyps and medusa. So polyps, they are sessile. Generally जो polyps form होता है, ठीक है, they are sessile. Okay, solitary और colonial. Colonies के form में भी पाए जा सकते हैं. Solitary भी है, sessile भी है. And resembles a cylindrical stalk. एक cylindrical stalk के जैसा दिखता है with a mouth and tentacles facing upward. So these are tentacles. ये सब tentacles है. ठीक है, और tentacles के center में आप देख रहे हो there is mouth. So mouth is present, tentacle is present. Okay, facing upward and the body is cylindrical, stalk like. Okay, so these are the basic characteristics of polyps. क्योंकि जो coelentrates है, their body forms are found in the two different way. आप देख सकते हैं दो तरह के body forms है, polyps and medusa. ये सारे polyps के characteristics है. Okay, now medusa, what is medusa? So it is solitary. Again it is solitary but free swimming. Okay, they are found as a free swimmer. Freely they are found swimming. It is a bell-like. Bell के जैसा होता है या umbrella के जैसा होता है. ठीक है, with a mouth and a tentacle facing downward. अगर mouth and tentacles downward हो जाए तो आप बोलोगे क्या है? Medusa. But if it is mouth and the tentacles
is upward, then it is polyps. Polyps में mouth and tentacles upward रहते हैं और medusa में downward. Okay. So medusa can be regarded as a upside down polyps. आप क्या बोल सकते हो? medusa जो है वो upside down, उल्टा polyps. ठीक है, upside down अगर कर दो polyps को, so you will get medusa. Okay. So outermost layer जो ऊपर का covering है, that is known as ectoderm और epidermis भी बोल सकते हैं. ठीक है. The middle layer, that is mesoglia. ठीक है, mesoglia. Then this is endoderm. Endoderm को आप और क्या बोलोगे? Gastrodermis. ठीक है. And the whole there is the central part, ये पूरा क्या है? Gastrovascular cavity. Okay. Tentacles are found. Central में mouth है, and mouth and the anus, the both are the opening, एक ही opening है. ठीक है. So the medusa can be regarded as a upside down polyps with reduced stalk. यहाँ पे जो स्टॉक आपको सिलेंड्रिकल स्टॉक दिख रहा है पॉलिप्स में क्लियरली, बट मेड्यूसा में नहीं दिख रहा है. ठीक है. सो वी कैन से द रिड्यूस स्टॉक पार्ट यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, विच कैन स्विम अवे. सो इजीली स्विमिंग में ये हेल्प कर रहा है. दिस मेड्यूसा फॉर्म, दे आर द फ्री स्विमर, अम्ब्रेला लाइक, बेल शेप. ओके. नाउ इन मेनी निडारियंस पॉलिप्स गिव राइज टू, ज्यादातर निडारियंस में क्या देखा गया? पॉलिप से ही वो बाद में मेड्यूसा में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. पॉलिप्स गिव राइज टू मेड्यूसा बाय वेजिटेटिव बर्डिंग, बाय वेजिटेटिव बर्डिंग. ओके. सो मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप्स, अगर जो मेड्यूसा फॉर्म है, जो पॉलिप्स बाद में मेड्यूसा में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, फॉलोइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप्स फॉलोइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बाद में वही मेड्यूसा फिर से पॉलिप्स बनाएगा बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. सो मेनी फॉर्म्स, वी कैन से मेनी फॉर्म्स ऑफ द निडारियंस लाइक ओबिलिया. ओबिलिया भी क्या है? एक तरह के सेलेंट्रेट्स है. दिस इज ओबिलिया. ओके. पासेस थ्रू बोथ द पॉलिप्स एंड मेड्यूसा. तो इस ओबिलिया में आप क्या देखोगे? बोथ द फॉर्म, दोनों तरह के बॉडी फॉर्म पाए जाते हैं, पॉलिप्स भी मेड्यूसा भी. ठीक है. इन देयर स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल. मीन्स एक ओबिलिया है, उनमें दोनों बॉडी फॉर्म्स मिलते हैं. सो दैट मीन्स दे आर शोइंग डाइमॉर्फिज्म. दो तरह के बॉडी फॉर्म्स एक ही ऑर्गेनिज्म में शो हो रहा है. ठीक है. सो दिस पार्ट आप देख रहे हो, ये पॉलिप्स वाला सिलेंड्रिकल पार्ट है. द टेंटाकल्स पार्ट अपवर्ड. ओके. टेंटाकल्स पार्ट इज अपवर्ड, तो ये पॉलिप्स वाला फॉर्म है. एंड हियर यू कैन सी देयर इज, दिस पार्ट इज मेड्यूसॉइड बर्ड. ये बाद में मेड्यूसा बनाएगा. ठीक है. दिस विल फॉर्म medusa. Okay, so both this body form is found in the single organism. That means एक ही लाइफ स्टेज में आप देख सकते हो दोनों तरह का स्टेज, दोनों तरह के आप बॉडी फॉर्म्स देख सकते हो in their life cycle. So that is dimorphism. Polyps reproduces asexually by budding. हाँ, asexual reproduction हो रहा है तो वो budding के थ्रू होगा. But whereas medusa liberate gamete. These medusa क्या करते हैं? दे लिबरेट गैमेट. ठीक है. दे लिबरेट्स गैमेट्स इन द वाटर एंड दे हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एज यू कैन सी, दिस इज मेडिसॉइड बर्ड, जिसके अंदर बहुत सारा गैमेट्स बन रहा है, एंड दैट विल बी रिलीज्ड इन द वाटर एंड हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. नाउ बोथ सेक्सुअल एंड द एसेक्सुअल फॉर्म्स आर डिप्लॉयड. ठीक है. The asexual as well as the you can say sexual forms of the cnidarians, they are diploid and the only haploid cells are gametes. So यहाँ पे सिर्फ gametes है जो haploid है. rest all are, चाहे वो sexual reproduction हो रहा हो या asexual reproduction हो रहा हो, the organism they shows diploid condition. Okay. Such alternation of asexual and sexual phases in the life of the obelia, the life cycle we can see sexual reproduction हो रहा है, asexual भी हो रहा है. So this is dimorphism का जो stage दिखा रहा है वो. ठीक है. polyps भी है, medusa भी है, and again alteration of asexual and sexual phase. ठीक है. that means एक बार asexual phase दिख रहा है, after that then the sexual phase. So this cycles goes on. इसी को बोलते हैं metagenesis. Okay. both this phases are seen. So that is metagenesis. Okay. So some form shows division of labor. Division of labor, that means work जो है वो distribute हो जाएगा.
by forming structurally and functionally different type of individual zooids. So zooids are formed और उन्हें different role मिले हैं, okay, within the same organism during their life history. So in a single life cycle, we can see the different, okay, different individual, that is the zooids, they get the different work. या तो उनका structure different है, function different है, okay. So एक ही organism में आप देखोगे बहुत सारे roles मिल रहे हैं different zooids को, so that is known as polymorphism. Polymorphism, okay. Now symmetry. What about the symmetry? अगर आप एक ऑरिलिया को ले लो, फाइसीलिया को ले लो, ठीक है, सो वी कैन सी दे शोज रेडियल साइमेट्री. यहाँ पे रेडियल आप किसी भी प्लेन से कट कर सकते हो, ठीक है. लाइक अगर हमारा बाई लैटरल साइमेट्री होता है, सो इन बाई लैटरल में क्या होता है, वी कैन डिवाइड इट विथ ओनली वन प्लेन. एक प्लेन से ही आप कट कर सकते हो एंड टू इक्वल हाफ यू विल गेट. Okay, so some sea anemone, कुछ sea anemones है, they possess biradial symmetry also. Biradial भी होता है, but mostly they are showing a radial symmetry. So bilateral symmetry occur in Pennatula. ठीक है, Pennatula is also one of the coelenterate जिसमें bilateral symmetry होता है. Means एक Pennatula को आप एक हाफ में बस कट, एक प्लेन से कट करोगे, so two equal half you will get. Okay. Now germ layer. About the germ layer, what are the two, either we have already classification वाला part में organism का जब animal kingdom के classification के बारे में पढ़ा था, so we have already seen either the organism are diploblast or triploblast. Okay, so cnidarians, they are diploblast. Why we are saying diploblast? क्योंकि इन organisms के body में two layers होते हैं, one is ectoderm and the endoderm. Okay, so like sponges, जैसे porifera में हमने देखा, they are diploblasts. Okay, so they have the two germ layer. Same way, the coelentrates are also having two germ layer, ecto and endoderm. Okay, और इसके बीच में एक layer होता है that is not easily being distinguished. ecto और endo के बीच में एक layer है that is mesoglia. Okay, and you cannot differentiate that layer. Okay, but the mesoglia is present between this. So level of organization कैसा है? Cnidarian possess tissue level because division of labor हमने पढ़ा है, यहाँ पे division of labor हो रहा है. Okay, so we have seen division of labor. That means work divide हो रहे. Cell में क्या होता है? One single cell is able to perform all the function, but tissues. Okay, so tissue grade में हम लोग क्या देखते हैं कि there are the group of cell, okay, that is having similar function. Okay, so the tissue level of organization is being seen क्योंकि यहाँ पे division of labor है. Now the body wall. What about the body wall? How do the cnidarians look like? Okay, so the body wall consists of two distinct layer. दो तरह के layer है. Outer one is known as epidermis. ऊपर का जो layer है that is known as epidermis. As you can see, ये polyps medusa में आप again देख सकते हो. The outermost layer which is just making an outline, that is known as epidermis. Epidermis के just बाद है, okay, let's see. Okay, so this part, the outermost layer, this outermost layer that is known as epidermis. Just after that, just beside that, there is a layer which is known as mesoglia. Okay, and after that there is endodermis. Okay, so the outer one is epidermis. Okay, epidermis है outer one, and the inner one, that is gastrodermis. Okay, there is gastrodermis, the inner one. Inner one को क्या नाम दिया गया है? Okay, endodermis और endoderm को क्या नाम दिया गया है? Gastrodermis. That is also known as endodermis. So the cell characteristics of cnidarians include what? Stinging cells. Cnidaria को कैसे पहचानते? They have stinging cells. ठीक है? So stinging cells, that is known as cnidocytes, cnidoblast, nematoblast, सारा इसी stinging cells को बोला जाता है. ठीक है? And why they are present? For offense and defense. Offense, अपने बचाव के लिए या stinging cells, cnidoblast or nematoblast.
Why they are present? For offense and defense, means अपने बचाव के लिए या दूसरे एनिमल्स को जब अटैक करना हो, so this stinging cells are very useful for this cell and traits. Okay, then interstitial cells are present. ठीक है, so to replace the worn out cells are being replaced by interstitial cells. So these are called totipotent. What does the word totipotent means? Means they are very much capable to produce the new cell. ठीक है, so interstitial cells क्या करता है? Replace करता है worn out cell को. So they are known as totipotent cells. And the epitheliumus, ठीक है, epitheliomuscular cells to provide musculature. Muscles जो develop होता है this cell and trait का by this ठीक है, epitheliomuscular cells. Now between the two layer, ये एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस जो इनर डर्मिस है, ठीक है, एंडोडर्मिस है, इसके बीच में देयर इज अ शीट, लेयर ऑफ अ शीट ऑफ अ नॉन सेल्यूलर. ठीक है, क्यों नहीं इस जो मिडिल वाले लेयर को क्यों नहीं हम एक लेयर मानते हैं? बिकॉज इट इज नॉन सेल्यूलर जेलेटिनस मटेरियल का बना है. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ नॉन सेल्यूलर जेलेटिनस मटेरियल दैट इज मेसोग्लिया. It is not called as a layer because it is made up of the non-cellular gelatinous material, which may contain free cells, but it is never formed of a cell. ठीक है, which may contain free cells होते हैं लेकिन never form of cells. Okay, so you can see this is again Cnidaria, एक coelenterate है. Cnidoseals are present. के पास टेंटाकल्स है, वहां पे आप देखोगे नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि स्टिंगिंग सेल्स है. ऑपरक्यूलम पार्ट है. नेमेटोसिस्ट है जिसमें स्टिंगिंग सेल्स जितने सारे आप बोल सकते हो स्टिंगिंग के लिए जो हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो इसी नेमेटोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज देयर एंड नाइडोसाइट्स. ठीक है, न्यूक्लियस पार्ट इज देयर. ओके, सो एंड दिस पार्ट ऑलरेडी वी हैव सीन कि ये पॉलिप्स है. Okay, and this is medusa. This is medusa. And in both we are seeing the layers, that is epidermis, gastrodermis inner है और mesoglia is the middle one, बीच में gelatinous layer है. Okay. Now we will see what is digestion. How do coelentrates perform their digestion? Digestion कैसे होता है? So you can see polyps and medusa. Polyps में easily आप देख रहे हो digestive cavity है, एक digestive cavity है जिसके थ्रू यहाँ पे आप देखोगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन परफॉर्म होता है. सो मेनली वी कैन से द coelentrates दे शोज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन. मेनली क्या है? इंट्रासेल्यूलर है, सेल के अंदर होता है. बट द एंडोथेलियल सेल्स जो सराउंडिंग सेल है, एंडोथेलियल सेल्स है, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स. दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. और वो एंजाइम्स कहाँ जाता है? इसी डाइजेस्टिव कैविटी में, या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी आप बोल सकते हो, फॉर पार्शियल डाइजेशन ऑफ द प्रे. जिस तरह से टेंटाकल्स की मदद से अपने शिकार को वो अट्रैक्ट करते हैं, फाइनली थ्रू माउथ दैट ऑर्गेनिज्म जो उनका फूड है वो अंदर की तरफ जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. ओके, देन जो एंडोथेलियल सेल्स एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उसके थ्रू डाइजेशन होता है. ठीक है, so therefore the digestion is both intracellular and intercellular also. इंट्रासेल्यूलर भी बोलोगे एंड इंटरसेल्यूलर, सेल के अंदर भी है. ठीक है, एंड सिंस द प्रे इज एंटरिंग एंड देन डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस. ओके, सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट. यहाँ पे आप देखोगे माउथ और एनस पार्ट जो है coelentrates में सेम है, मींस वन सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट. ठीक है, सो देयर वी कैन से इट इज इनकम्प्लीट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट बोला गया क्योंकि होना ये चाहिए था जैसे फ्रॉम माउथ टू एनस, लेकिन यहाँ ओपनिंग क्या है? यही माउथ है एंड द वेस्ट आर आल्सो बीन रिमूव थ्रू दिस. तो माउथ और एनस एक ही ओपनिंग है. ओके, इसलिए इनकम्प्लीट बोला गया है. सर्कुलेशन कैसे होता है? coelentrate डिस्ट्रीब्यूट द फूड बिसाइड्स पार्टली डाइजेस्टिंग इट. ठीक है, थोड़ा डाइजेस्ट करके then the distribution take place. On account of this dual role, coelentrates is also they are known as gastrovascular cavity. तो digestion भी इसी में हो रहा है. ठीक है, then the distribution of the food is also taking place through here. ठीक है, coelentrate distributes the food beside partly digesting. डाइजेशन का भी काम वही डाइजेस्टिव कैविटी कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम, इसलिए they are known as gastrovascular cavity.
ठीक है, सेलेंट्रेट्स के जो डुअल नेचर है, फॉर दैट सेलेंट्रॉन, दिस पार्ट जहां पे डाइजेशन का पार्ट चल रहा है, सेलेंट्रॉन्स आर नोन एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. ओके, नाउ रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ अकर थ्रू द बॉडी सरफेस. रेस्पिरेशन भी बॉडी सरफेस से हो रहा है और एक्सक्रीशन भी, वेस्ट भी रिमूव होगा उनके बॉडी के सरफेस से बाय द सिंपल प्रोसेस दैट इज नोन एज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की मदद से वेस्ट भी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होते हैं. निडारियंस आर एमिनोटेलिक. अमोनिया मोस्टली इनके वेस्ट में क्या होता है, अमोनिया, सो दे आर एमोनोटेलिक. सेंसेशन कैसे होता है, कैसे वो अपने दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कैसे फील कर लेते हैं. सो सेंसेशन कैसे, सेंसरी सेल्स अकर इन देयर बॉडी वॉल. बॉडी के पूरे वॉल में सेंसरी सेल्स होते हैं. द स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर दैट इज नेमेटोसाइट्स, आप बोल सकते हो स्टैटोसिस्ट. स्टैटोसिस्ट, स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर इंक्लूड स्टैटोसिस्ट. ठीक है, फॉर बैलेंसिंग एंड दी फॉर बैलेंसिंग एंड ऑसिली फॉर फोटोसेंसिटिविटी. अगर लाइट का कहीं से आप देख सकते हो इफेक्ट पड़ रहा है तो उसके लिए सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, दे आर नोन एज ऑसिलाई. फॉर फोटोसेंसिटिविटी और बैलेंसिंग के लिए क्या है, स्टैटोसिस्ट है. ठीक है, बैलेंसिंग के लिए स्टैटोसिस्ट एंड फोटोसेंसिटिविटी के लिए है ऑसिली. नाउ नर्वस सिस्टम कैसा है, न्यूराइट्स ऑफ द नर्व सेल. तो नर्व सेल यहाँ पे आप बोल सकते हैं न्यूराइट्स फॉर्म्स अ शॉर्ट ऑफ अ नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी एंड नर्व सेल्स आर एपोलर एंड द नर्वस सिस्टम इज नॉन पोलराइज्ड. तो नर्वस सिस्टम इनका नॉन पोलराइज्ड होता है. स्केलेटन कैसा होता है, स्केलेटन कैसा है, हॉर्नी है और कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन. ठीक है, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट. ओके, so calcareous exoskeleton as well as endoskeleton is present in many cases. endoskeleton भी है, exoskeleton भी है जो कि calcareous है, horny भी होता है. ठीक है, these skeletons and corals are specialized to secrete a calcareous exoskeleton. corals अगर आपने देखा होगा, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो भी बहुत कॉमन है, कोरल रीफ बैरियर में आपने पढ़ा होगा कोरल्स के बारे में. So they are very specialized and they secrete calcareous exoskeleton. Okay, so वो जो you can see जो corals होते हैं they belongs to this coelenterate. वो coelenterate ही है. ठीक है, so they are made up of calcareous exoskeletons. Now reproduction, how do the coelenterate reproduce? Coelenterate reproduce both by asexual and sexual method. ठीक है, सो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बडिंग के थ्रू होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा. ओके, सो इन मेनी निडारियंस पॉलिप्स यूजुअली रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली. पॉलिप्स में जैसे कि हमने देखा कोई गैमेट्स नहीं बनते तो वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. बट मेड्यूसा, सो वी कैन फर्स्टली सी पॉलिप्स रिप्रोड्यूस बाय बडिंग टू गिव राइज. तो वही पॉलिप्स बाद में मेड्यूसा भी बन जाता है जिसकी वजह से उन्हें डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं. That means they are showing dimorphism. The medusa bear gonads. और जो मेड्यूसा पार्ट है उसके अंदर क्या होते हैं, मेड्यूसा के अंदर क्या है, गोनाड्स है, बहुत सारे. ठीक है, गोनाड्स होते हैं और सेक्स ऑर्गन्स एंड रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली. और यही मेड्यूसा, ठीक है, मेड्यूसा दे रिप्रोड्यूसेस एंड फॉर्म्स पॉलिप्स और बाद में यही पॉलिप्स बनाता है. ठीक है, दैट इज मोस्टली आपने देखा होगा ओबिलिया के केसेस में. नाउ फर्टिलाइजेशन, हाउ डू द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और इंटरनल ऑल्सो. क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक. ठीक है, डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों आप देख सकते हो यहाँ पे. एंड इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है, लार्वल स्टेज. द लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट एंड दैट इज प्लैन्युला और इन ओबिलिया. ओबिलिया का लार्वा है प्लैन्युला. ठीक है, and साइफिस्टोमा एंड एफायरा इन ऑरिलिया. ऑरिलिया का अगर लार्वा आपसे पूछा जाए, लार्वल स्टेज ऑरिलिया, सो दैट इज स्काइफाइस्टोमा एंड आइफ्रा. ठीक है, और प्लैन्युला किसका है, ओबिलिया का. सो दी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, दैट मीन्स पहले लार्वा बनता है, लार्वा से फिर बाद में एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं. सो लार्वल स्टेज अगर पहले आ जाए दैट मीन्स दे आर शोइंग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट.
ठीक है, एंड इफ देर इज नो लार्वल स्टेज नहीं है, सो डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो सेलेंट्रेट्स के एग्जाम्पल क्या है, कॉमनली वी नो, सबसे इंपॉर्टेंट वही सिंपल, हाइड्रा, पोरपाइटा, वेला, फाइसीलिया। ठीक है, फाइसीलिया जिसको और पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोला जाता है, ऑरिलिया जेलीफिश, ये भी बहुत कॉमन है। ठीक है, एडम्सिया विच इज नोन एज सी एनिमोन, पेनाट्यूला जिसको सी पेन भी कहते हैं, गॉर्गोनिया विच इज नोन एज सी फैन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेलेंट्रेट। ये सब सेलेंट्रेट्स है, मोस्टली मैराइन है, हाइड्रा फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, ऑरिलिया विच इज एक्टिव स्विमर। ओके, नाउ द यूनिक फीचर्स, व्हाट इज द यूनिक फीचर, कैसे पहचाना जाए इस सेलेंट्रेट्स को? सो स्पेशल स्टिकिंग सेल्स और नाइडोसाइट्स, नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए, जो कि सिर्फ सेलेंट्रेट्स के पास प्रेजेंट होते हैं। अ सिंपल नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल्स एंड फाइबर। ओके, दूसरा एडवांसमेंट, पॉरीफेरा से कैसे और एडवांस है ये सेलेंट्रेट्स। सो टिश्यू लेवल हमने देखा, जो कि पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल था, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द बॉडी विद अ वेल डिफाइंड लेयर्स ऑफ द सेल। ओके, नर्वस सिस्टम जो है प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ओके, देन डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स, जो कि हमने पॉरीफेरा में नहीं देखा, तो ये सारी चीज न्यू है विच इज जस्ट सीन। ठीक है, सेलेंट्रेट्स पे देखा गया, पर पॉरीफेरा में ये नहीं दिखता है। ओके, सो नाउ we have almost came to the end of this Coelentrates, phylum Coelentrate. Okay, so we have seen किस तरह से body का characteristics कैसा होता है, how does the digestion take place, what are the different layers of the body wall. So now in the next lecture we'll cover up the another phylum. Okay, so Tenophora part is left after that. So thank you for watching.